दिस इज द पार्ट 2 चिल्ड्रन, है ना। इफ जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? सो ये जो भारत का दक्षिण भाग है, द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर plateau. You can see children, this peninsular plateau, it is an ancient landmass, है ना। in Himalayas chapter I have explained you already कि this landmass it is a गोंडवाना लैंडमास। ये पहले क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंडमास। ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया है चिल्ड्रन की पैंजिया क्या होता था, पैंजिया जो है वो कैसे ब्रेक हुआ है ना, और गोंडवाना लैंड जो है वो आके यहाँ पर जुड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाई है। जिसने भी चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एंशियंट लैंडमास कैसे कहलाता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे वी आर वॉचिंग कि दिस रीजन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो एज यू कैन सी दिस लैंडमास इट इज अ फ्लैट टेबल लैंड। जस्ट सी, ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड चिल्ड्रन। दिस इज द फ्लैट टेबल लैंड एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 sides from a water. You can see here is Arabian Sea, here is a Lakshadweep Island, okay, here is a Bay of Bengal, Gulf Bay of Bengal, and in south it is a Andaman Nicobar Island. So you can see children all these 3 sides are surrounded by a water. आप देख रहे हैं कि इसकी जो 3 sides है totally it is covered by a water, okay, and you can see in north, है ना, in north it is a broad and in south this is a narrow and it is stretch up to कन्याकुमारी। आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ में कैसे कितना चौड़ा है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, है ना, ब्रॉड में कितना है, चौड़ा है, और साउथ में जो है वो कितना ज्यादा नैरो है। कहाँ तक गया है ये हमारा लास्ट पॉइंट? कन्याकुमारी तक गया है। We will see here what is the characteristic. इसकी characteristics क्या होती हैं? So it is an ओल्ड क्रिस्टलाइन, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ ओल्ड क्रिस्टलाइन। किससे बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन से बना है, लाइक अ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ओके। वी विल सी this is इसका if we talk about the shape, if we talk about a shape of the peninsular plateau, so this is in triangular shape. किस शेप में दिख रहा है आपको? ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, and it is bounded all sides by it is bounded by northern portion, okay, northern portion it means जो peninsular plateau के जो नॉर्थ में पड़ रहा है। so northern portion of the peninsular plateau it is bounded by Aravalli hills in a Rajasthan, Vindhya ranges, okay, Satpura ranges and Rajmahal hills. All these are another portion of the peninsular plateau. Plateau it has a 2 division. First is a central highland and second is a Deccan plateau. Okay, so this hills are covered in a central highland and this area is called a Deccan plateau. So we will understand here what is the central highland. Central highland children, we can say this part of the this is the part of the peninsular plateau and it is lying north of the Narmada river. Central highland कहाँ? ये area. This area is a central highland and it is lying north of the Narmada river. Your Narmada river it is flowing here. Origin of the Narmada river from Amarkantak. Narmada river कहाँ से बह रही है? Narmada river it is flowing the origin of the Narmada river from the Amarkantak and it is flowing a westward extension. It is flowing western, okay, western and Narmada, Tapti, Narmada, Tapti, Luni river. These rivers are flowing in a westward direction, okay. And if we say so this is it covers a major area of the Malwa. This belt is a Malwa belt. This belt is a Malwa belt. So central highland it covers a major area of the Malwa, okay, Malwa belt. You can see Malwa plateau. Okay, this cover major area of the Malwa plateau. So this is called a central highland. Now we will see Vindhya ranges. Here is a Vindhya ranges. It is lying north of the Satpura ranges.
लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि जो विंध्य रेंजेस है, विंध्य रेंजेस इट इज लाइंग नॉर्थ ऑफ द सतपुड़ा रेंजेस। यहाँ पे सतपुड़ा रेंजेस आपकी पाई जाती हैं। सतपुड़ा रेंजेस के नॉर्थ में आपको विंध्य रेंजेस जो है वो देखने को मिलेगी, रेंजेस है ना। यहाँ पे आपको इसके ऊपर मालवा बेल्ट के पास ही, ओके, मालवा बेल्ट के पास ही आपको अरावली रेंजेस देखने को मिलेगी। तो जो अरावली रेंजेस है कहाँ पे पड़ रहा है? सतपुड़ा रेंजेस के एक पहली बात तो नॉर्थ में है, एंड द सेकेंड थिंग कहाँ है? वेस्ट पार्ट में है। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, this part is the north west part, so it is the extension of the north west part, okay। अरावली हिल्स जो हैं वो आपकी कहाँ पे पड़ रही हैं? it is lying north west of the Satpura ranges। राजस्थान, डिजर्ट ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं? वी से डिजर्ट ऑफ राजस्थान, दिस इज अ थार डिजर्ट। थार डिजर्ट इट इज मेड अप ऑफ डून, सैंडी एंड अ रॉक। आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे आपके इसमें स्क्रीन आ रही है जिसपे कि दिख रहा है कि ये डून से जो नुकीले हैं, सैंडी और रॉक से थार डिजर्ट जो है हमारा बन रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, विच रिवर्स आर फ्लोइंग हियर, ओके, विच रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ थार डिजर्ट? थार डिजर्ट, ओके, इट इज इन राजस्थान। कहाँ पे पड़ रहा है ये? आपके राजस्थान एरिया पे पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि रिवर्स आर फ्लोइंग ड्रेनिंग नेमली एज अ चंबल, केन, बेतवा, सिंध। दीज रिवर्स आर फ्लोइंग, ओके। सो हाउ द रिवर्स आर फ्लोइंग? आपकी जो रिवर्स है देखिए वो ऐसी बह रही है ना। So this is the Chambal, this is the Ken, this is the Betwa, this is the Sindh river, okay। So these rivers are flowing, direction देखिए चिल्ड्रन, नाम साउथ वेस्ट, साउथ से बह रही है आपकी रिवर, किस साइड में है? वेस्ट। अब रिवर्स आपकी कैसी जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। आपकी रिवर्स जो है, रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। लिसन चिल्ड्रन, ध्यान से देखिए, और ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है आपके लिए, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए थार डिजर्ट, थार डिजर्ट इट इज लोकेटेड इन अ राजस्थान, इट इज मेड अप ऑफ सैंड, डून्स एंड अ रॉकी। हाउ द विच रिवर्स आर फ्लोइंग हियर? Chambal, Ken, Betwa, Sindh. Just I mention children short name Chambal, Ken, Betwa, Sindh, and these rivers are flowing southwest to north। देखिए south, this portion is a west part, okay, this part is a ईस्ट पार्ट। सो ये किस पार्ट में आ रहा है? आपके वेस्ट पार्ट में आ रहा है। रिवर्स कहाँ पे है? साउथ में है। फ्लोइंग कहाँ पे हो रही है? आपके ऊपर, है ना, ऊपर जा रही है, इट मीन्स नॉर्थ। और देखिए इसका जो डायरेक्शन है इधर पे नहीं है, दिस पार्ट इज द वेस्ट, दिस पार्ट इज द ईस्ट। तो रिवर का जो डायरेक्शन है, ऑल दीज रिवर्स आर फ्लोइंग नॉर्थ साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज अ बुंदेलखंड एंड अ बघेलखंड। सो जो आपका यहाँ पे एक बेल्ट बनता है, आपका जो यहाँ पर बेल्ट बनेगा, तो ये एरिया जो है वो क्या कहलाएगा? बुंदेलखंड कहलाएगा, ओके। दिस एरिया इट इज अ बुंदेलखंड। चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इट इज फॉर बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। तो इसीलिए मैं आपको, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर Hindi also and English also। And this here is a Baghelkhand, here in north it is a Bundelkhand and here it is a Baghelkhand। It is the further eastward extension of the and here which river is flowing? Here the Damodar river it is flowing। So we can see children, कहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में आता है। इट बिकम्स इन अ छत्तीसगढ़ रीजन, ओके। सो यहाँ पर जो है आपका वो छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है, एंड इट इज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा है? ईस्टर्न पार्ट है, ओके। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। अब हम पढ़ेंगे डिकैन प्लेट्यू चिल्ड्रन, ओके। देखिए आप दिस रीजन जो है ना, ये रीजन आपका क्या कहलाता है? डिकैन प्लेट्यू कहलाता है। तो डिकैन प्लेट्यू हम देख सकते हैं, इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। इफ वी टॉक अबाउट द डिकैन प्लेट्यू, सो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड इट लाइज
south of the Narmada and the Narmada river and the Satpura ranges. Okay, so you can see here is the Narmada river, here is the Satpura ranges. तो Deccan Plateau it is lying, है ना, साउथ पार्ट है. किसके पार्ट है ये, किस कहाँ पे बह रहा है, साउथ पार्ट में बह रहा है, प्लस ये जो है नर्मदा और सतपुड़ा हिल्स के साउथ में पड़ रहा है. अब हम देखेंगे कि इट इज सतपुड़ा रेंजेस इज ब्रॉड इन अ नॉर्थ. दिस सतपुड़ा रेंजेस, है ना, सतपुड़ा रेंजेस जो है आपकी यहां से यहां तक, तो यहां पर सतपुड़ा रेंजेस इट इज डिवाइडेड इन अ 3 पार्ट. हियर इज अ महादेव. ओके, Mahadev, this is the Mahadev, this is the Maikal, and this is a third portion, it is a Kamur ranges. It is a Kamur ranges. These parts are a division of the Satpura. Okay children, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि सतपुड़ा रेंजेस इन इट इज ब्रॉड इन अ नॉर्थ. सतपुड़ा रेंजेस जो है आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में कैसा है, ब्रॉड है, ठीक है, प्लस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. In west it is a Mahadev. In west it is a Mahadev. West part of Satpura, Mahadev. Central part of the Satpura it is a Maikal, and east part of the Satpura it is a Kamur. Okay, and this is the eastern दिस इज द वेस्टर्न टू ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सतपुड़ा. अब हम देखेंगे कि डिकैन प्लेट्यू जो है, यहाँ पर आपका डिकैन प्लेट्यू जो है, यहाँ पर मालदा ग्रेप के आपने देखा कि ये डिकैन प्लेट्यू था. दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड दिस इज द डिकैन प्लेट्यू. तो आपका यहाँ पे चिल्ड्रन, ओके, सो वी विल सी द एक्सटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट. दिस एरिया इज द नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये डिकैन, इट इज द पार्ट ऑफ द डिकैन प्लेट्यू. ये जो है पार्ट है आपका, ये डिकैन प्लेट्यू का पार्ट है, और ये एक्सटेंशन है आपका कहाँ, नॉर्थ ईस्ट. दिस डिकैन प्लेट्यू इट इज अ साउथ, दिस डिकैन प्लेट्यू इट इज अ नॉर्थ ईस्ट. ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे इट इज सेपरेटेड बाय अ मालदा गैप. ये जो डिकैन प्लेट्यू है वो आपके मालदा गैप के द्वारा यहाँ पे अलग हो रहा है, सेपरेटेड बाय अ मालदा गैप्स. एंड हियर 3 हिल्स, देयर आर द 3 हिल्स रेंजेस फ्रॉम ईस्ट. हम देखेंगे यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया हिल्स पाई जाती है. इट इज 3 रेंजेस इन अ ईस्ट. फर्स्ट इज अ गारो हिल्स, सेकंड इज अ खासी हिल्स, थर्ड इज अ जैंती हिल, है ना. हम देख रहे हैं कि अरावली हिल्स जो है इट इज एन एंशियंट माउंटेन, एंड ये एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ अरावली, सो फ्रॉम इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली 1100 किलोमीटर, एंड इट इज पासेस थ्रू 4 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, है ना, 4 शहरों से होकर जाती है. अब हम देखेंगे इट इज हाईली इरोटेड mountain. It is a highly eroded and it is lying northwest part of the peninsular plateau. This area it is a peninsular plateau. So अरावली जो है आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ रहा है. It is lying northwest part of the peninsular plateau. This is the explanation of the Aravalli hills. We will see next is the Thar desert, Indian desert. Now see children, Thar desert it is located in a Rajasthan, and it is made up of dunes, rocky plains and sand. Okay, this is a sand. So Thar desert it is made up of sand, dunes, rocky and plains. So where it is located, this is the ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अरावली हिल्स. कहाँ पे पड़ता है ये, अरावली हिल्स के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में पड़ता है, ठीक है ना. अब हम देखेंगे, सॉरी, इट इज लाइंग टूवर्ड द वेस्ट, इट इज लाइंग टू द वेस्टर्न ऑफ द अरावली हिल्स, है ना. अरावली हिल्स it is located western margin of Aravali hills, and it receives this region it receives very low rainfall. ये जो राजस्थान है ये क्या है, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है. it receives very low rainfall, below 150
मिलीमीटर पर ईयर, मतलब पर ईयर हर साल कितने मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे? 150 मिलीमीटर। अब ये बताइए चिल्ड्रन, जब बारिश ही नहीं होगी, पानी ही नहीं होगा यहाँ पे, जो एंड नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, सो वेजिटेशन जो होगा वहां पे कैसा होगा? बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट होता है? एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट मतलब कि सूखा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर लो वेजिटेशन देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज लो रेनफॉल, बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो कैसा होता है? लो रेनफॉल होता है। अगर हम बात करते हैं हमारा, आपने देखा कि हिमालय के नीचे जो नदन प्लेन्स था, नदन प्लेन्स में हमारी इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवर्स क्या बना रही थी? सेडिमेंट है ना, सेडिमेंट्स को इनने बिछाया। तो जो नदन प्लेन था, इट इज वेरी फर्टाइल रीजन फॉर द एग्रीकल्चर। वहां पे अच्छी खासी बारिश भी होती है, हिमालय के कारण वहां पे अच्छा खासा रेनफॉल भी होता है, तो वहां पर वेजिटेशन प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। इवन वी से चिल्ड्रन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया। दैट्स वाई राजस्थान में क्या है? एक तो पहली बात कि ये डून्स और प्लेन्स से बने हुए हैं। दूसरी बात सेकंड चिल्ड्रन कि ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अरावली, सॉरी वेस्टवर्ड, इट इज लाइंग वेस्टवर्ड मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तीसरी बात क्या है चिल्ड्रन? लो रेनफॉल हो रहा है ना, रिसीव वेरी लो रेनफॉल 150 मिलीमीटर एवरी ईयर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एरिड क्लाइमेट है। अब बारिश नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि लो वेजिटेशन है ना, कैसा वेजिटेशन जो है वो लो हो रहा है। अब हम देखेंगे वन मोर, विच रिवर इज फ्लोइंग? नदर्न प्लेन में हमने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर इज फ्लोइंग। ओके, सो यहाँ पर चिल्ड्रन लूनी रिवर, कौन सी रिवर फ्लो हो रही है? लूनी रिवर इज फ्लोइंग इन अ थार डेजर्ट एंड इट इज फॉलिंग इन अ रन ऑफ कच्छ इन अ गुजरात। कहां पर गिर जाती है ये रिवर? ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाकर जो आपका अरेबियन सी है वो यहां से गिर जाती है आपके अरेबियन सी पे। और लूनी रिवर चिल्ड्रन, मैं बार बार आपको एक ही बात बताना चाहूंगी कि जो आपकी नदियां है ना, विच रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ वेस्टर्न डायरेक्शन, आपकी जो नदियां वेस्टर्न डायरेक्शन में बह रही हैं तो वो कौन कौन सी हैं? आपकी ताप्ती है, नर्मदा है, प्लस लूनी है, मतलब और माही है ना। आपकी कुछ मेजरली 4 to 5 रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ वेस्टर्न डायरेक्शन एंड फॉलिंग इन अ अरेबियन सी। और भारत की पूरी नदियां, चाहे आइदर इट इज इन हिमालय रिवर और इट इज अ पेनिनसुलर रिवर, पूरी की पूरी रिवर जो है वो आपकी कैसी है? ईस्टर्न रिवर है। अगर आपकी यहाँ पे भी रिवर है तो वो कैसी फ्लो हो रही है? ईस्टर्न। और कहाँ जाके गिरती है चिल्ड्रन? ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट, दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट। चिल्ड्रन ये आपका ये एरिया जो है, दिस रीजन इट इज अ ईस्टर्न घाट एंड दिस रीजन इट इज अ वेस्टर्न घाट। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि यू कैन सी वेस्टर्न घाट इट इज अ नैरो प्लेन है, एंड वही बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट इट इज अ वाइडर है ना। तो हम थोड़ा सा इसको नैरो कर लेते हैं। Western and Eastern Ghat we will learn. So children you can see Western Ghat. Western Ghat it is a narrow. आप देख रहे हैं कितना नैरो है, नैरो मीन्स सकरा है ना। वेस्टर्न घाट जो है ये रीजन आपका कैसा है? नैरो, सकरा है। अगर हम वहीं देखते हैं ईस्टर्न घाट, तो जो आपका ईस्टर्न घाट है वो कैसा है? वाइडर, वाइडर मीन्स चौड़ा। वेस्टर्न घाट जो है, सॉरी हमारा ईस्टर्न घाट वहीं पर चौड़ा है। सी द डिफरेंस, वेस्टर्न घाट इट इज अ नैरो एंड अ ईस्टर्न घाट सो इट इज अ वाइडर। सेकेंड वी कैन सी this western ghat it is between a Arabian Sea and a western coast. चिल्ड्रन ये जो यहाँ पर जो आपका ये वाटर लेवल है, यहाँ पे क्या है? ये वाटर लेवल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द वाटर कोस्ट, दिस रीजन इज अ वाटर कोस्ट। और जैसे कि यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल है, नीचे अंडमान निकोबार है, तो ये एरिया आपका क्या कहलाएगा? ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट।
ओके, सो हम देख सकते हैं वेस्टर्न घाट इट इज लोकेटेड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे से अपन देखेंगे जो आपका ये ईस्टर्न घाट है इट इज अलोंग विथ अ बे ऑफ बंगाल। हमारा ईस्टर्न घाट कहाँ तक गया है? बे ऑफ बंगाल तक गया है। और हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ तक गया है? अरेबियन सी तक गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इट हैज अ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, है ना। आप क्या देख रहे हैं? इट इज अ कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। 3 सेक्शन क्या? पहला जो है कोकन कोस्ट, थर्ड जो है वो क्या है? कन्नड़, एंड द थर्ड इज द मालाबार कोस्ट। अब हम देखेंगे चिल्ड्रन कोकन कोस्ट। कोकन कोस्ट इट इज बिटवीन महाराष्ट्र टू गोवा। चिल्ड्रन देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। कोकन, कोकन इट इज अ महाराष्ट्र टू गोवा कोस्ट। कोकन कोस्ट इट इज अ बिटवीन अ महाराष्ट्र टू गोवा। सेकेंड इज अ कन्नड़ कोस्ट। सेकेंड जो है आपका कौन सा है? कन्नड़। तो कन्नड़ जो है वो गोवा से आपका कर्नाटक तक जाएगा। कहाँ से जाएगा? गोवा से आपके कर्नाटक। चिल्ड्रन आई एम राइटिंग इन अ शॉर्ट, ओके। एंड थर्ड जो है वो आपका मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट आप देखिए कर्नाटक टू केरल। कहाँ तक गया है ये? कर्नाटक टू केरल तक गया है। It has a Western Ghat has a 3 section. If we see in a Eastern Ghat have a 2 section, which one is a Nadan Sarkar and second is a Coromandel coast. पहला सेक्शन जो है वो कौन सा है? यहाँ पे नदन सरकार है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरी सरकार। और सेकंड है जो है कोरोमंडल कोस्ट, हिंदी में ही इसको कोरोमंडल कोस्ट वी से, ओके। हम देखेंगे विच रिवर्स आर फ्लोइंग इन अ ईस्टर्न डायरेक्शन। कौन सा? ईस्टर्न डायरेक्शन। सो दे मेक्स अ डेल्टा। यहाँ की जो रिवर्स है वो क्या बना रही है? बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बना रही हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न रिवर की, कौन सी? वेस्टर्न रिवर, तो वो क्या बना रही हैं? एस्चुरी बना रही हैं। चिल्ड्रन मैं बताऊंगी आपको ये रिवर्स जो है एस्चुरी क्यों बनाती हैं। वी डिस्कस डेल्टा कैसे बना रही हैं, क्यों? क्योंकि दिस ईस्टर्न घाट इट इज अ वाइडर। जो वेस्टर्न घाट है वो कैसा है? चौड़ा है। जब चौड़ा होता है व्हेन रिवर्स फॉल डाउन इन अ बे ऑफ बंगाल, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छी ऊंचाई से रिवर्स क्या है? नीचे गिर रही है। तो वो यहाँ पे क्या बना रही है? डेल्टा बना रही है। ऐसे ही मैं डीपली आई विल डिस्कस विथ यू दिस चैप्टर लेटर, है ना। ये जो बचे हुए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। चिल्ड्रन हमने देखा कि ये जो एरिया है वो क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट दे मार्क्स अ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, एंड हियर ईस्टर्न Ghat it also marks a eastern boundary of a Deccan Plateau. Ghats are parallel to the western coast and cross through the passes only. हम देखेंगे कि जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट थे, ये वेस्टर्न घाट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अप टू कन्याकुमारी, है ना। तो ये किसके पैरेलल है? वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है? चिल्ड्रन कोस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो चिल्ड्रन कोस्ट दैट एरिया इट इज कवर्ड बाय अ वाटर। आपने देखा हियर इज द अरेबियन सी, हियर इन साउथ हियर इज द लक्षद्वीप आइलैंड। सो दिस इट इज टोटली कवर्ड बाय द वाटर। सो दिस एरिया इज कॉल्ड अ वेस्टर्न, दिस रीजन इज कॉल्ड अ वेस्टर्न कोस्ट, है ना। वेस्टर्न घाट इट इज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट and here it is crossed through the passes. यहाँ पे जो है 3 passes के द्वारा क्रॉस किया जाता है। हम देखते हैं वो passes जो है Western Ghat lie parallel to the western coast and crossed through passes only. There are the 3 passes, children. NM Thal passes, MP Bhor passes, and third is the KK Pal. Okay, these are 3 passes. So we will learn NM Thal. Thal is what? Nasik to Mumbai. Nasik to Mumbai is a Thal passes. Second is a Mumbai to Pune. Second is a Mumbai to Pune, है ना। मुंबई से पुणे तक आपका जो है वो कौन सा है? थाल पासेस। एंड थर्ड इज अ केके पाल। KK Pal, Cochin to Coimbatore. Third pass is a Cochin to Coimbatore is a third pass that is called a KK Pal, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कि ईस्टर्न there are the 2 highest peak.
in a Western Ghats, Doda Betta, it is highest peak, and Anaimudi is the highest peak, first highest peak in a Western Ghat, and second is a Doda Betta. These are the highest, okay, these are the highest peak of the Western Ghat, कि it is the higher than the Eastern Ghat. अगर हम देखते हैं चिल्ड्रन, सो जो वेस्टर्न घाट है आपका, क्या वेस्टर्न घाट इट इज अ हायर देन अ ईस्टर्न घाट. आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचा है, और इसका अगर एवरेज एलिवेशन देखेंगे तो इट इज a 900 to 1600 किलोमीटर. इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो कितना है, 900 से 1600 किलोमीटर है. ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी इन द साउथ. जो ये ईस्टर्न घाट आपका यहाँ पर महानदी से कहाँ तक फैला हुआ है, आपके नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स पाई जाती है साउथ में. देखिए आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ पर महानदी रिवर बह रही है नॉर्थ में, और साउथ में जो है वो नीलगिरी हिल्स की हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो कैसी है, आपकी नॉर्थ टू साउथ है. कैसी नॉर्थ टू साउथ चिल्ड्रन, ऐसी. जो स्लोप है वो कैसा है, दिस एरिया इज साउथ, दिस एरिया इज अ नॉर्थ. जो ज्यादा ऊपर है वो क्या होगा, नॉर्थ, है ना, और ये साउथ. तो आपने इसका स्लोप, जो ये स्लोप है इसका डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो कैसा डायरेक्शन है, ईस्ट. किस साइड रिवर्स फ्लो हो रही है, ईस्ट साइड. हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड हाईएस्ट पीक इंक्लूड द हाईएस्ट पीक, है ना. कौन कौन सी हमने देखा, अनाईमुडी एंड डोडा बेट्टा. अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे डोडा बेट्टा जो है वो कितनी है, 2637 मीटर है. महेंद्रगिरी जो है वो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में जो महेंद्रगिरी है वो क्या है, हाईएस्ट पीक है. ठीक है ना. अगर हम ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे चिल्ड्रन, आपको कंपेयर करके पढ़ना है. डोडा बेट्टा, अनाईमुडी, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, एंड महेंद्रगिरी इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न पार्ट. ओके, ईस्टर्न घाट. वहीं हम देख रहे हैं शेवरॉय जवादी हिल्स आर लोकेटेड इन अ साउथ ईस्ट घाट, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न घाट. हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए शेवरॉय जवादी हिल्स जो है आपकी कहाँ पर पड़ेगी, साउथ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे पड़ रही है, सॉरी, है ना. ये जो है आपकी कहाँ पे, साउथ ईस्ट, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में पड़ रही है. एंड हियर इज द वन फेमस हिल स्टेशन दैट इज अ कोडाईकनाल एंड अ उडंग मंडलम, है ना. ये जो एंड वन मोर ऊटी. तो जो ये फेमस हिल स्टेशन है आपके यहाँ पे साउथ के ईस्टर्न घाट के साउथ में पड़ते हैं, दैट इज अ कोडाईकनाल, उडंग मंडलम एंड ऊटी. नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक पड़ता है आइलैंड. इंडिया हैव, अब हम आइलैंड क्या कहलाता है चिल्ड्रन, तो हम देखेंगे कि आइलैंड जो है इंडिया के पास क्या है, इंडिया हैज वास्ट मेन ऑफ आइलैंड. ठीक है, इंडिया के पास जो है वो 2 आइलैंड पड़ते हैं. एक कौन सा आइलैंड पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है, और एक जो है वो कौन सा पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आपके कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न घाट में. कहाँ पे पड़ेगा, वेस्टर्न घाट पे. और वहीं आपका अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आपके कहाँ पे पड़ेगा, तो वो आपके ईस्टर्न घाट में पड़ता है. अब हम देखेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड इट इज लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, है ना. हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने मालाबार कोस्ट देखा, केरला के पास क्या है, मालाबार कोस्ट है. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट से बहुत ही नजदीक है. और ये आइलैंड को पहले क्या बोला जाता था, लेकरडाई मिनिकॉय. क्या बोलते थे इसको पहले हम, अर्लियर इट वाज नोन एज अ लेकरडाई मिनिकॉय, एंड इट कवर्स 32 किलोमीटर. इसका जो एरिया है वो कितना है, 32 किलोमीटर है. एंड कवरत्ती इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप.
चिल्ड्रन हम जैसे देखते हैं दिल्ली, दिल्ली इट इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया की क्या है, कैपिटल है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो क्या है, कवरत्ती, कवरत्ती जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ओके, एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर जो है लक्षद्वीप आइलैंड पे ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। वो डाइवर्सिटी कौन सी है, फ्लोरा फौना। चिल्ड्रन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहेंगे। और ये सीरीज जो है 8 to 12 ऑल सब्जेक्ट है, जैसे वीडियो बनते रहेंगे वैसे अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।